Assalamu alaikum class. Am I audible? Walaikum assalam. Yes, ma'am. Okay, class. Welcome to all of you. And you are from the Chemical Engineering Department, fifth semester, right? Yes, ma'am. Okay. Are the CR of both sections are here? Yes, ma'am. Abdullah, you are the CR of section B. Yes, ma'am. And who is the CR of section A? Ma'am Talha. Talha, okay. Talha and Abdullah, both of you mark the attendance of a whole class, and after the lecture you will share it with me. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. What is the strength of section A and section B? Ma'am, 37 students in section B. 36. Okay. And it means almost all are here. Okay, class, I am still students are joining. Okay, class, I'm your teacher of numerical analysis. I'm going to take your numerical analysis. And as mentioned, you all are familiar with my name. Okay, I'm repeating, my name is Zilfa Elahi. And regarding to my professional career, I started my career from Forman Christian College in 2011. And then I joined Punjab University, Department of PUCIT. Then I continued there for 5 years, and then I switched my job towards University of Lahore. I served there almost 2.5 years, and then from the last year I'm here in University of Engineering and Technology, and still I am visiting over here, or you can see I am on contract right now. So that was my little hardships of almost 10 years. Anything you want to ask about me? No one? मैम आपने एफसी में कितने साल पढ़ाया? FC में almost 1 year. Start मैंने FC से किया था 2011 to 2012 मैथ्स डिपार्टमेंट में. Then फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चली गई थी 2012 में. और फिर 2017 तक ऑलमोस्ट उधर ही थी. Okay, class. First of all, you all are from the chemical engineering department. So, what is your opinion regarding maths? बहुत आसान सब्जेक्ट है. बोरिंग सब्जेक्ट है. Interesting. मैम subject. इजी है. मैम अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन मार्क्स नहीं आते. अच्छा, मुझे तो लगता है कि मार्क्स ही मैथ्स में आते हैं. मैम क्लास में समझ Yes, आती है. ma'am. Easily बस math मैम marks अगर are सवाल सही हो जाए तो. Okay, class. One thing which I am going to, as this is our introductory lecture, so मैं आपको एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जो मैथ्स है
it totally depends on two things. The first is your understanding with the teacher, and the second one is your interest. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I am saying, not saying that if the teacher is good, I am saying that teacher, you must have understanding with your teacher. According to my opinion, and I think I am right to some extent, that anyone, your teacher, either it is he or she is coming to teach you, then it means that he or she must be better than you, at least better than you. So he or she could have something which is not in you. So it depends on you that how you all tackle with the teacher. If you are ignoring, if you have no concern, if you are not showing any interest, then automatically teacher will be lazy. Okay, मैं किसी और की एग्जांपल नहीं देती, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मैं एक ऐसी क्लास में जाती हूँ जहाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा भी पढ़ा दूंगी और बच्चों का कोई इंटरेस्ट ऐसा खास नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे और क्या चाहिए, मेरे लिए रिलैक्सिंग चीज है, ऐसा है। जो मुझे पेमेंट मिलनी है या जो मैंने सीखना था, जो मैंने लर्निंग करनी थी, लर्निंग प्रोसेस तो खैर नहीं खत्म होता कहीं पे भी, लेकिन उस सब में नुकसान सिर्फ स्टूडेंट का होता है। किसी भी टीचर को ये पता नहीं चलता कि स्टूडेंट्स उसके साथ चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे, या उसको पिक करें या नहीं करें। कुछ फिजिकल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिनसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको एक फिजिकली अपीयरेंस दे रहे होते हैं कि हमें समझ आ रही है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली अपीयरेंस दे रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन जो उसके दरमियान की स्लॉट है, जो बाहर जाके डिस्कशन करती है क्लास से कि हमें तो समझ ही नहीं आया टीचर क्या आई बोल गई, और तो उससे बेहतर है कि आप अपनी कंसर्न टीचर्स के साथ डिस्कस करें कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम ये फेस कर रहे हैं। टीचर मैक्सिमम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा टीचर होता है जो अगर स्टूडेंट उसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे तो वो उसको अकोमोडेट ना करे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट अ हेल्दी फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट, ठीक है, विच आई नीड इज योर कोऑपरेशन एंड योर इंटरेस्ट। ठीक है, और अब हेल्दी और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर means that we can talk with each other, we can discuss anything with each other, but within the limit of the respect. ठीक है, I am repeating that, within the limit of respect. मैं अपने 10 years के करियर में हमेशा फर्स्ट लेक्चर में यही बात करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट करना नहीं जानते ना, वो मेरे लिए बहुत अनबेरेबल चीज होती है। ठीक है, तो मैं उनके साथ रूड भी हो जाती हूँ और मीन्स मेरे लिए मुश्किल होता है उनको टैकल करना। ठीक है, तो होप सो कि आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट करें और हमारा सेमेस्टर जो है वो स्मूथली और एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में स्मूथली चलता जाए। ओके, देयर इज a hand raised by Bill Gates. Who is Bill Gates here? Yes. मैम ये न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट
मैम आवाज आ रही? यस बेटा। मैम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मतलब हमें ये सारा टीच करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और उसकी लैब। हेलो। मैम मैं पूछ रहा था कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हमें टीच करेगा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट और उसकी लैब? जी बेटा, मैथ्स डिपार्टमेंट से, आई एम बिलोंग्स टू मैथ्स डिपार्टमेंट। इट इज ये न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो मैथ का सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये टेक्स्ट कौन कर रहा है बीच में? मैम काइंडली आप डिसेबल कर दें चैट्स को, और जो नेम चेंज करने की एबिलिटी है वो भी फिनिश कर दें। ओके क्लास, जी बात हो रही थी न्यूमेरिकल एनालिसिस से। न्यूमेरिकल एनालिसिस चूंकि मैथ्स का सब्जेक्ट है तो मैथ्स डिपार्टमेंट से ही मैं हूँ। आई डोंट नो आपकी लैब है न्यूमेरिकल एनालिसिस की या नहीं, बट मैं आपको थ्योरी ही पढ़ाऊंगी। तो उसके लिए जो है मेथड हम यही करेंगे कि हम जो है इसकी जो वीडियोस हैं लेक्चर्स की, आई डोंट नो अभी तक आप लोगों का तो मिड से पहले ऑनलाइन ही चलेगा और मिड के बाद जो है वो फिजिकल है। आपका 5th सेमेस्टर है ना, तो इस वजह से ओके गिव मी 1 सेकेंड। ये जो स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं मैं इनको रिमूव कर लूँ। ओके जी, फर्दर क्वेश्चंस? बुक कौन सी सब्जेक्ट के लिए? मैम सब्जेक्ट के लिए बुक कौन सी होगी? और जो है हम लोग स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे। बेटे वो तो जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करेंगे। जो जो आपकी कोर्स आउटलाइन में टॉपिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ाया जाएगा। रिगार्डिंग टू द बुक मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ऑनलाइन बुक का जो एक लिंक है वो फॉरवर्ड कर दूं। उसके अलावा ये है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इज बेसिकली, आपने मैथ्स के पहले कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हैं? कैलकुलस और मल्टीवेरिएट कैलकुलस, अप्लाइड मैथ्स भी पढ़ा वहाँ। अप्लाइड मैथ्स इज अ सॉर्ट ऑफ द कैलकुलस। फर्दर ये कि न्यूमेरिकल एनालिसिस उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको एल्गोरिथम्स पे काम करना है। आपको एल्गोरिथम्स दिए जाएंगे, उसमें आपने वैल्यूज जो है कैलकुलेट करनी है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट वन सब्जेक्ट, इट इज वेरी इजी एंड I assure you that you will enjoy the techniques. Just you have to practice the algorithms. आपको एल्गोरिदम प्रैक्टिस करने हैं और जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा आपके हैंड्स जो हैं वो कैलकुलेटर पे काम करना सीखेंगे, उतनी जल्दी आप जो है इसको सब्जेक्ट को कवर अप करोगे।
ऐसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिस तरह हम बात करते हैं मोबाइल की, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक्स्ट एनीबॉडी और यू आर राइटिंग इन द वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन द लैपटॉप, तो आप समटाइम्स मतलब आप देख भी नहीं रहे होते स्क्रीन की तरफ या कीबोर्ड की तरफ और आप टाइप कर रहे होते हो, ऐसा ही है। तो वो क्यों है? क्योंकि आपकी उस पर